بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں مہنگی بجلی بھاری ٹیکسز کے خلاف تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ لاہور کی تمام بڑی اور ہول سیل مارکیٹس بند رہیں۔ ہال روڈ، شاہ عالم، اعظم کلاتھ مارکیٹ، انارکلی بازار، بادامی باغ آٹو مارکیٹ بند رہی۔ منٹگمری روڈ، اردو بازار، سرکولر روڈ سمیت دیگر بازار بند تھے۔ اچھرا مارکیٹ، مزنگ مین بازار، لبرٹی مارکیٹ میں ہڑتال۔ گڑی شاہو، لنڈا بازار، لٹل روڈ، جن مندر، عابد الیکٹرانکس مارکیٹ میں کاروبار نہیں ہوا۔ ایف بی آر کی تاجر دو اسکیم کے خلاف شہر کی بڑی ہول سیل مارکیٹیں بند۔ شاہ عالمی، اعظم کلاتھ مارکیٹ، بادامی باغ آٹو مارکیٹ، منٹگمری روڈ، سرکولر روڈ کی مارکیٹیں بھی بند رہیں۔ مال روڈ، ہال روڈ، عابد مارکیٹ، بیڈن روڈ، اچھرا، سینٹری مارکیٹ، برنتھ روڈ، مکلوڈ روڈ، انارکلی سمیت دیگر ہول سیل مارکیٹیں بھی بند رہیں۔ جنرل سیکرٹری پاکستان ٹریڈر اینڈ مینوفیکچررز الائنس وقار علی کا کہنا تھا کہ حکومت نے تاجر دوست پالیسی تاجر دوست اسکیم واپس نہ لی تو غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کی کال دیں گے۔ پورے پاکستان کی تاجر برادری نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ گورنمنٹ کی بربریت، غنڈہ گردی کے خلاف یہ ٹیکس خوروں کے خلاف یہ ہڑتال ہے۔ اللہ نے آج ہمیں سرخرو کیا ہے۔ صدر شوز مارکیٹ اعجاز خان کا کہنا تھا کہ تاجروں پر اضافی ٹیکس تسلیم نہیں، حکومت تاجروں کو ریلیف دے۔ ہم نے پرامن احتجاج کیے، اپنے ریزرویشنز گورنمنٹ تک پہنچائے، لیکن گورنمنٹ کے کان پہ کوئی جو نہیں رنگی۔ آج دیکھیں کہ پوری طرح شٹر ڈاؤن ہے، اور ایک دن شٹر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تقریباً 100 ارب سے زیادہ ملکی معیشت کا نقصان ہوتا ہے۔ انفارمیشن سیکرٹری انجمن تاجران لاہور حافظ علاء الدین کا کہنا تھا کہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن حکومت ریلیف والی پالیسی لائے۔ ہم نے کہا کہ تمیز کی جائے نان فائلر اور فائلر میں، اور جو اضافی ٹیکس جو جنرل سے ٹیکس ہم پہ سے لیے جا رہے ہیں، ہماری اس کے خلاف آواز ہے۔ اور جو حکومت نے ٹاؤٹ بٹھائے، جنہوں نے مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دہی چلا رہے تھے، ان کی دکانداری بند ہو گئی ہے۔ تاجر قائدین کا کہنا تھا کہ حکومت تاجر دو اسکیم کو فوری ختم کرے، کوئی نئی اسکیم لانے سے قبل تاجر نمائندوں کے ساتھ مشاورت کرے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42۔ تاجر برادری کی بجلی کے بھاری بھرکم بلوں، ٹیکسز کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ کاروباری سرگرمیوں کا مرکز اندرون شہر کی مارکیٹیں بند، جبکہ کینٹ، ڈیفنس، ٹاؤن شپ، شاہدرہ، چنگی امر سدو سمیت دیگر علاقوں میں ریٹیل مارکیٹس کھلی رہیں۔ لاہور کی تاجر برادری نے بجلی کے بھاری بھرکم بلوں اور تاجر دوست ٹیکس اسکیم کے خلاف ہڑتال کی۔ شاہ عالم، اعظم کلاتھ، پاکستان کلاتھ، گنپت روڈ پیپر مارکیٹ، ہال روڈ، نولکھا، بادامی باغ اور مکلور روڈ مارکیٹیں بند رہیں۔ سرکولر روڈ، براندرتھ روڈ، اردو بازار، انارکلی بازار، جیل روڈ، سمن آباد، مولانا شوکت علی روڈ کی مارکیٹ مکمل بند رہیں۔ بری منڈی، دہلی دروازہ سمیت اندرون لاہور کے بازار، مال روڈ، بیڈن روڈ، نسبت روڈ، کیمرا مارکیٹ، فیروز پور روڈ، ماربل مارکیٹ بھی بند رہیں۔ ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیکس نہیں دیں گے، اور تاجر سے عام آدمی سے لے کے ایلیٹ کلاس تک ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے۔ ان کی آواز اگر آج ہم بنے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو خانہ جنگی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ پیسٹ کے اوپر وہ ٹیکس دیتے ہیں، کپڑوں کے اوپر وہ ٹیکس دیتے ہیں، جوتوں کے اوپر وہ، اور بجلی کے بلوں میں جو 18 قسم کے ٹیکس لگ کے آ رہے ہیں وہ کون دے رہا ہے؟ وہ کو IMF دے رہی ہے یا حکومت دے رہی ہے؟ وہ بھی تاجر ہی دے رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو حالات بن چکے ہیں تاجروں کے اوپر، وہ اتنے ناگوار بن چکے ہیں کہ آج کا تاجر اپنی جو کرایہ دار ہے اپنی دکان کا کرایہ بھی نہیں نکال سکتا۔ شاہدرہ کی مارکیٹیں اچھرا بازار، باغبان پورہ بازار، کوٹ لکھپت، چنگی امر سدو، ٹاؤن شپ مارکیٹ، گرین ٹاؤن، کریم بلاک مارکیٹ، DHA کی مارکیٹوں سمیت پوش علاقوں کی ریٹیلز مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں۔ تاجر تنظیموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز ختم کرے اور تاجر دوست ٹیکس اسکیم میں مشاورت سے ترامیم کرے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سعید احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لیسکو امپلائیز پیغام یونین کا لیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاجی دھرنا۔ پیغام یونین کے چیئرمین توقیر اسلام نے قیادت کی، حکومت سے نجکاری روکنے، IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ ادھر 197 افراد کی بھرتی کا مطالبہ۔ MCN لیبر یونین خدمت گروپ کا دھرنا۔ خدمت یونین میاں جہانگیر گروپ نے ٹاؤن ہال میں کام بند رکھا۔ لیسکو امپلائیز پیغام یونین ملازمین نے لیسکو ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاجی دھرنا دیا۔ مظاہرین کی جانب سے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ SD ثاقب او کا کہنا تھا کہ بجلی کمپنی سمیت قومی اداروں کی نجکاری قبول نہیں، IPPs کے معاہدوں کو فوری ختم کیا جائے۔ توقیر اسلم کا کہنا تھا کہ لیسکو انتظامیہ کی جانب سے ملازمین پر ظلم نہ کیا جائے، کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل، خالی پوسٹوں پر ملازمین کے بچے مستقل بھرتی کیے جائیں۔
ہمارے دفاتر میں کام کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن دباؤ اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فیٹل حادثات ہو رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ نئی بھرتیاں کی جائیں، فوری طور پر IPPs معاہدے ختم کیے جائیں۔ دوسری جانب MCL لیبر یونین خدمت گروپ کی جانب سے ایک بار پھر دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ 197 افراد کی بھرتی کو یقینی بنایا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارا مطالبہ ہے بیگ سروس جن MCL کے ملازمین کو نہیں ملی ہے ان کو فل فور بیگ بینیفٹ سمیت بیگ سروس دی جائے۔ مظاہرین نے کہا کہ اعزازیہ کی بلا تفریق فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اب بات کی جائے موسم کے حوالے سے تو موسلادھار بارشوں کی نئی انٹری۔ لاہور کے بیشتر علاقوں میں بادل کھل کر برسے۔ جیل روڈ، مال روڈ، شادمان اور اطراف میں بارش ہوئی۔ شاہدرہ، گلشن راوی، سمن آباد، اقبال ٹاؤن کے علاقے بھی گئے۔ ہربنس پورہ، مغل پورہ، دھرم پورہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر کا درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مال روڈ، کوٹ لکھپت، جوہر ٹاؤن، گلبرگ، جیل روڈ پر تیز بارش ہوئی۔ چنگی، امرت سدو، اسلام پورہ، چبرجی، ساندہ میں بادل خوب برسے۔ شادمان، جیل روڈ، مال روڈ، انارکلی، ریلوے اسٹیشن، داتا دربار کے اطراف بھی تیز بارش ہوئی۔ ڈیوس روڈ، لکشمی، کرتبہ چوک، ہربنس پورہ، مغل پورہ، دھرم پورہ، فتح گڑھ، جلو کے اطراف بھی بادل کھل کر برسے۔ شہر میں مسلسل بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شہر میں بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش گوئی۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو اور لاہور یہ فوڈ پوائنٹس کا رخ نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شالامار، لنک روڈ، مغل پورہ، گڑی شاہو سمیت دیگر مقامات پر شہری تکہ کباب سمیت لذیذ کھانے کھا کر موسم کا مزہ دوبالا کر رہے ہیں۔ مزید احوال جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ، بتائیے گا۔ شالامار لنک روڈ پر موجود ہوں۔ آج صبح سے موسم اچھا رہا۔ تیز بارش کے بعد بھی اس وقت درجہ حرارت کافی کم ہو چکا ہے، جس کے پیش نظر پورے شہر میں جو لاہوریے ہیں وہ کھابے کھانے کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت بھی میں ایک فوڈ پوائنٹ پر موجود ہوں، یہاں پر بھی شہری جو کہ کھانے کھانے آئے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کیا چیز آرڈر کی ہے آپ نے، کیا چیز کھا رہے ہیں؟ یہاں پہ جی ہم نے یہ نیبلیٹس ہیں، تکے ہیں، کباب ہیں، تو یہ آرڈر کیا ہے۔ سارے دوست مل کے آئے ہیں، موسم اچھا تھا تو دوستوں نے کہا کہ باہر سے کھاتے ہیں تو وہ کھانے آئے ہیں۔ جی بالکل، شہریوں کی جانب سے موسم اچھا ہونے کے باعث لطف اندوز ہو کر جو کہ کھابے کھائے جا رہے ہیں۔ مختلف قسم کے کھابوں کے جو فوڈ پوائنٹس ہیں وہاں پر شہریوں کا رش دیکھا جا سکتا ہے۔ فیملیز کے ہمراہ بھی آئے ہوئے ہیں، دوستوں کے ہمراہ بھی، اور موسم اچھا ہوتے ہی جو فوڈ پوائنٹس ہیں اس پر بڑا رش لگ چکا ہے۔ جی طلحہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا مشن۔ نئے بلدیاتی ایکٹ کے مسودے پر نظر ثانی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات آگے وزارت بلدیات اثر نو جائزہ لے گی۔ بلدیاتی اداروں میں خواتین، نوجوان، کسانوں اور اقلیتوں کی نمائندگی لازم بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلدیاتی نظام کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کی ہدایت کر دی۔ نئے بلدیاتی نظام کے تحت پنجاب میں پہلی مرتبہ ٹاؤن کارپوریشنز اور تحصیل کونسلز بنانے کے لیے ورکنگ شروع کر دی گئی۔ یونین کونسلز، ٹاؤن کارپوریشنز، تحصیل کونسلز، میونسپل کمیٹیز، میونسپل کارپوریشن اور میٹروپولیٹن کارپوریشن بنے گی۔ میدانی علاقے کے یونین کونسلز 20,000 جبکہ پہاڑی علاقے کے یونین کونسل 5,000 آبادی پر مشتمل ہوگی۔ 70 لاکھ سے زائد آبادی والے شہر میں میٹروپولیٹن کارپوریشن بنے گی۔ نئے بلدیاتی نظام میں اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قبل ازیں وزارت بلدیات نے بلدیاتی ایکٹ 2024 کا مسودہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کیا، جو کہ نظر ثانی کے لیے واپس بھجوا دیا گیا۔ ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ میں فیل امیدواروں کے لیے بڑا ریلیف۔ فیل ہونے والے امیدوار 42 کے بجائے 15 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ دے سکیں گے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے موٹر وہیکل رولز میں ترمیم کر دی گئی۔ کرپشن مافیا کا نیٹ ورک توڑنے کا فیصلہ، لائسنسنگ سینٹر پر تعیناتیوں کا عرصہ 1 سال سے کم کر کے 6 ماہ کر دیا گیا۔ فیلڈ سٹاف کو ہر مہینے کے بعد ڈیوٹی کی روٹیشن کرنے کا بھی حکم جاری۔
ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल उम्मीदवारों को बड़ा रिलीफ मिल गया। फेल होने वाले उम्मीदवार 42 दिन के बजाय 15 दिन में दोबारा टेस्ट दे सकते हैं। सीटीओ के मुताबिक शहरियों के कीमती वक्त के पेश नजर पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम कर दी गई। दूसरी जानिब लाइसेंसिंग सेंटर्स पर करप्शन माफिया का नेटवर्क तोड़ने का फैसला कर लिया गया। लाइसेंसिंग सेंटर पर तैनातियों का अरसा 1 साल से कम करके 6 माह कर दिया गया। एडिशनल आईजी ट्रैफिक के हुक्म पर तमाम जिले ट्रैफिक अफसरान को मरासला भिजवा दिया गया। मरासले में कहा गया है कि इंचार्ज ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर कंप्यूटर ऑपरेटर 6 माह से ज्यादा तैनात न रखे जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स में 6 माह तैनाती मुकम्मल होने पर दोबारा ऐसी पोस्ट पर तैनात नहीं किया जाएगा। शिकायत मौसूल होने पर इंक्वायरी की जाएगी। कसूरवार पाए जाने पर अफसर या अहलकार को फौरी ओहदे से हटाया जाएगा। करप्ट अफसर या अहलकार को मुस्तकिल तौर पर लाइसेंसिंग सेंटर्स या किसी और कलीदी पोस्ट पर तैनाती से रोक दिया जाएगा। मरासले के मुताबिक सर्विस के दौरान कोई अहलकार या अफसर लाइसेंसिंग ब्रांच में 3 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। सर्विस के दौरान टिकटिंग ऑफिसर के तौर पर तैनाती की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। रीडर, एमटीओ और ओएसआई पोस्टिंग की मुद्दत 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। डीटीओस और ओएसआई ऐसे ओहदेदारों की निशानदही करके ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट भिजवाएं। फील्ड स्टाफ को हर महीने के बाद ड्यूटी की रोटेशन की जाए। तैनाती का अरसा मुकम्मल होने के बाद कोई फील्ड ट्रैफिक ऑफिसर अहलकार उसी सेक्टर में तैनात नहीं रहेगा। किसी भी ट्रैफिक अमले को मुस्तकिल तौर पर किसी भी आला मातहत के साथ मुंसलिक नहीं किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर काशिफ अनवर समेत दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। फैसल करीम कुंडी कहते हैं शोबा ज़राअत के जरिए ही मुल्की माईशत को मुश्किलात से निकाला जा सकता है। तरबेला के बाद कोई बड़ा डैम नहीं बना। फैसल करीम कुंडी ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर दीगर ओहदेदारान और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। गवर्नर केपीके फैसल करीम कुंडी ने कहा मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर करके सरमायाकारों को सरमायाकारी के लिए रागिब किया जा सकता है। जब वो हुकूमतों में आते हैं तो फौरन ही प्रेशर आता है कि हमें अब जो है वो बिजली पैदा करनी और शॉर्ट रिलीफ लोगों को देनी है। इस वक्त जो सिचुएशन इकोनॉमिकल सिचुएशन है, लोग जो पहले बाहर ममालिक जाते थे वो 50% जो है महंगाई की वजह से कट ऑफ हो गए हैं और वो बाहर नहीं जाते, वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं। काशिफ अनवर बोले IPPs मुल्क की मईशत पर बोझ हैं। माशी पॉलिसियों में बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत जरूरी है। टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल जारी रहेगी। हम टैक्स पेयर्स के पैसे का सालाना अरबों रुपए बिजली की पैदावार के लिए IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा कर दिया जाता है। और अगर मैं और बहुत आसान अल्फाज में कहूँ तो हम इस सोच के पैसे दे रहे हैं कि हम इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। गवर्नर केपीके से ताजर रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने मुलाकात की। कैमरामैन मोहम्मद अंजम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। एयरपोर्ट्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग सहूलियात का जायजा। सूबाई वज़रा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर का एयरपोर्ट का दौरा। सरबराह टेक्निकल ग्रुप प्रोफेसर जावेद अकरम भी हमरा थे। तमाम एयरलाइंस को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लाहौर एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का जायजा लिया। साबिक वज़ीर सेहत और टेक्निकल ग्रुप के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम भी सूबाई वज़राए सेहत के हमरा थे। वज़रा ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए कायम मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग सहूलियात का जायजा लिया गया। सूबाई वज़राए सेहत ने एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन FI अफसरान के साथ मुशावरती इजलास की सदारत की, जिसमें मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब की हदूद में कायम 6 एयरपोर्ट्स पर मुश्तबा मंकी पॉक्स मुसाफरों के लिए करंतना सेंटर्स बनाए जाएंगे। WHO के मंजूर शुदा प्रोटोकॉल्स के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर करंतना सेंटर्स के लिए जगह मुख्तस की जाएगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास। ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसपोर्ट, पुलिस, एक्साइज एंड टैक्सेशन, LDA कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर, RTA ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाई एंड मोटरवे पुलिस पंजाब समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के हुकाम, मुख्तलिफ गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की नुमाइंदगान ने शिरकत की। सेक्रेटरी PTI फैसल सुल्तान ने ब्रीफिंग दी और ट्रांसपोर्टर्स के चार्टर ऑफ डिमांड से आगाह किया। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर खान का कहना था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का बुनियादी मकसद ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर तमाम मसाइल हल करना है। पूरी उम्मीद है कि कमेटी के समराज जल्द सामने आएंगे, ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत दूर होंगी।
वज़ीर आला के मुकर्रर करदा सुथरा पंजाब के अहदाफ ज़रूर हासिल करेंगे। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की गुफ्तगू। कहते हैं मरियम नवाज शरीफ हर लिहाज से पंजाब को साफ सुथरा देखना चाहती हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs का वीडियो लिंक इजलास हुआ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल, मारिया तारिक ने शिरकत की। इजलास के दौरान 8 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs ने आउटसोर्सिंग के हवाले से सूबाई वज़ीर को अपडेट किया। वज़ीर बल्दियात ने पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि टाइम लाइन के मुताबिक तहसील की सतह पर कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब मुकम्मल किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी हर साल तजदीद जरूरी होगी। उन्होंने सितंबर के पहले हफ्ते तक कॉन्ट्रैक्टर्स के इंतखाब का अमल मुकम्मल करने की हदायत की। ज़ीशान रफ़ीक का कहना है गलियों नालियों की सफाई यकीनी बनाई जाएगी। MPA मलिक वहीद की NA 119 सिंहपुरा में अवामी बैठक। हल्के के अवाम के मसाइल सुने, हल के लिए अहकामात सादर किए। MPA मलिक वहीद ने मरकजी दफ्तर NA 119 सिंहपुरा में अवामी बैठक लगाई। जावेद खान, हाजी अकरम, ताहिर बशीर, जोदत मसूद खान, मास्टर फयाज, मलिक अनवर समेत अहले इलाका ने शिरकत की। साइलिन ने इलाके के मसाइल से लीगी रहनुमा को आगाह किया। MPA ने मुतल्लिका इदारों को जल्द मसाइल के हल के अहकाम जारी किए। मलिक वहीद का कहना था कि मुस्लिम लीग ने हमेशा अवाम दोस्त मंसूबे मुतारिफ करवाए हैं। MPA कंवर लियाकत का AC शालीमार के ऑफिस का दौरा। अपनी छत अपना घर स्कीम के रजिस्ट्रेशन के लिए कायम डेस्क का जायजा लिया। MPA कंवर लियाकत की सरबराही में लिगी खवातीन कारकुनान के वफ्द ने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातमा के दफ्तर का दौरा किया। मलिक लियाकत अवान समेत दीगर ओहदेदारान हमरा थे। वफ्द ने AC ऑफिस में कायम वज़ीर आला पंजाब की स्कीम अपनी छत अपना घर के रजिस्ट्रेशन के लिए कायम डेस्क का दौरा किया। खवातीन को अपनी छत अपना घर स्कीम की अहलियत से मुतालिक आगाही दी गई। कंवर लियाकत ने कहा, वज़ीर आला पंजाब का नया प्रोग्राम अपनी छत अपना घर गरीब आवाम के लिए खुशियों की नवीद साबित होगा। हजरत सैयद फखरुद्दीन अल मारूफ सैयद मीरा हुसैन जिंजानी रहमतुल्लाह अलैह दरबार की कमेटी के मेंबरान का इजलास। उर्स की तारीख का ऐलान कर दिया गया। हजरत सैयद फखरुद्दीन अल मारूफ सैयद मीरा हुसैन जिंजानी रहमतुल्लाह अलैह दरबार की कमेटी के मेंबरान के इजलास में चेयरमैन दरबार कमेटी मेहताब यूनुस चन्ना की तरफ से ऐलान किया गया है कि उर्स 27 से 29 सितंबर तक होगा। इजलास में खलीफा मोहम्मद इमरान बट चिश्ती, शहबाज राजू, नदीम एजाज, पप्पू हैदरी, हकीम गुलाम मुर्तजा मुजाहिद, शेख शौकत, नदीम चिश्ती, अदरीसुर रहमान मुगल, मोहम्मद अली मुगल, हाशिम एजाज, सूफी खालिद, जाहिद इकबाल समेत दीगर ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए गहमा गहमी उरूज पर। रहनुमा DHA एग्जेक्टिव ग्रुप मियां नवाज ने प्याफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के एहसास में तकरीब सजाई। कायदीन उम्मीदवारान ने शिरकत की। शुरका ने प्याफ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। मियां नवाज ने डिफेंस एज ब्लॉक में प्याफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवारान और कायदीन के एहसास में तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल, चेयरमैन पायोनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन मस्कर, मोहम्मद अली मियां शरीक हुए। इस मौके पर DHA रिटेलर्स एसोसिएशन ने प्याफ पायोनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस की हिमायत का ऐलान किया। मियां नवाज ने कहा कि ये अलायंस मोरूसी सियासत का खात्मा करके हकीकी मानों में चैम्बर को ताजरों का चैम्बर बनाएगा। हारिस अतीक, शाहिद नज़ीर, खुरम लोदी, हाफिज सज्जाद, उस्मान मलिक और दीगर वफ्द का हिस्सा थे। तकरीब में इमरान फैज, मुनव्वर हुसैन, अब्बास अली, रफीक हसरत भी मौजूद थे। स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम तकरीबे तकसीम अस्ताद 42 शॉर्ट कोर्सेज करने वाले 300 से ज़ायद तुलबा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डेवलपमेंट सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम तकसीम अस्नाद की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 42 शॉर्ट कोर्सेज करने वाले तुलबा को सर्टिफिकेट्स दिए गए। डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर कामरान मिर्जा का कहना था, स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी का तारीख साज इक़दाम है, जिसमें लाखों तुलबा शॉर्ट कोर्सेज से मुस्तफीद हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को जनरल एजुकेशन के साथ साथ मुख्तलिफ शार्ट ड्यूरेशन के स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज करवा रहे हैं। मल्टी हमारे पास जो है ना जी वो ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा मतलब कोर्सेज हैं, जिसके अंदर जो है ना जी वो सॉफ्ट स्किल से लेके कंप्यूटर स्किल्स और हार्ड स्किल्स तक जो है ना जी वो हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे वो सिखाते हैं। तुलबा का कहना था कि शॉर्ट कोर्सेज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मुस्तकबिल में हमारे लिए मददगार साबित होगा। यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग SEO का कोर्स किया था, तो मुझे थोड़ी सी पहले इसमें नो हाउ थी, तो इसको जस्ट स्किल्स को पॉलिश
कोशिश करना, और मेंटोर्स ने भी काफ़ी गाइड किया, और प्रोफेशनली मुझे लगता है अगर हम इन कोर्सेज़ को लेते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोफेशनली लेके चल सकते हैं. बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है. इस एज में आफ्टर मैरिज मैंने MS वर्ड का कोर्स किया है, ऑफिस मैनेजमेंट का, और बहुत एक्सपीरियंस रहा है. आई थिंक सो कि सबको बहुत अच्छे से जो है ये कोर्स करना चाहिए. मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट. मैं सेकेंड ईयर के बाद जब मैं फ्री टाइम पे थी, मैंने उसके लिए ये डिसाइड किया था. और अब यूनिवर्सिटी में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मैं फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए, तो उसके लिए मुझे आसानी हो रही है. तलबा ने वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, स्पोकन इंग्लिश, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग समेत मुख्तलिफ कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स वसूल किए. डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर कामरान मिर्जा, डीन इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड मैनेजमेंट प्रोफेसर डॉक्टर राना शफीक समेत असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की. शुरका ने तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42. पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़ेर-ए-तमाम आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया. कॉलेज के मारूफ असातिज़ा और नावर मुसव्वरों के फनपारे आवेज़ा किए गए. पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के ज़ेर एहतमाम आर्ट नुमाइश मुनक्किद की गई. वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद ने इफ्तिताह किया. कॉलेज के मारूफ असातिज़ा और नामवर मुसव्वरों के फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए. वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा कि नुमाइश में एलुमनाई के फनपारों को पेश किया गया. तहरीक पाकिस्तान की अक्कासी पर मबनी फनपारे भी पेश किए गए. हमें बड़ा फ़ख्र होता है अपने इन कलीग्स का काम देख के. आज की जो नुमाइश है ये यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के जो रिटायर्ड असातिज़ा हैं, हमारे जो एलुमनाई हैं, बाज़ यहाँ के ख़ास तौर पे जो प्रिंसिपल्स रह चुके हैं, उनकी यहाँ पे जो है वो निगारशात और उनका जो काम है वो यहाँ पेश किया गया है. एना मौलका के फनपारे भी नुमाइश में आवेज़ा किए गए. फोटोग्राफी है, टेक्सचर बेस्ड है, डिफरेंट मटेरियल्स को साथ यूज़ करके इंस्पिरेशन है, लाइक पुराने मीडियम, न्यू मीडियम, हर चीज़ों को लेकर एक मिक्सचर बनाया गया है. 14 अगस्त के हवाले से भी बहुत सारे काम आप यहाँ पर देखेंगे, और फिर उसी के साथ जो कॉलेज की एनिवर्सरी है वो भी एक तरह से उसको भी ट्रिब्यूट चला जाता है. ये आज का शो है, सारे अलमनाई और फैकल्टी मेंबर्स के काम को इन्होंने इकट्ठा किया. जितनी डिफरेंट जॉनर्स हैं पेंटिंग के हवाले से, वो सारे आपको यहाँ पे नजर आते हैं. नुमाइश में कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर समीना नसीम, डॉक्टर राहिद नवीद मसूद, शाहनवाज जैदी, मारूफ आर्टिस्ट जुल्फकार हैदर, जफरुल्ला, मलिहा आगा, रुखसाना डेविड ने शिरकत की. नीलोफर कहकशां, मुसर्रत हसन, खालिद इकबाल समेत फैकल्टी में इमरान और तलबा भी शरीक थे. कैमरामैन सैयद मिराज के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42. बायो इंफॉर्मेटिक्स टूल्स पर तरबियती वर्कशॉप के हवाले से गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स और अल अली मेडिकल कॉलेज ने एहतमाम किया. मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 100 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की. गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में पंजाब यूनिवर्सिटी के ताउन से गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स और अल अली मेडिकल कॉलेज के ज़ेर-ए-तमाम बायो इंफॉर्मेटिक्स टूल्स पर तरबियती वर्कशॉप हुई. प्रिंसिपल अल अली मेडिकल कॉलेज MS गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल प्रोफेसर हामिद हसन ने वर्कशॉप का इफ्तिताह किया. वर्कशॉप में लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की. प्रोफेसर हामिद हसन का कहना था कि कॉन्फ्रेंस मेडिकल की शोबा से वाबस्ता अफराद के लिए अहम संगे मिल साबित होगी. वर्कशॉप में असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर इरफान मलिक, डॉक्टर मोहम्मद उमैर हनीफ, डॉक्टर हाफिज मुजम्मल रहमान से दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की. समझते हैं कि साइंस जो है वो दिन ब दिन बदलती जाती है. हर रोज़ नई इंफॉर्मेशन आती हैं, नई डिस्कवरीज आती हैं, इवन डिजीज़ भी नई आ जाती हैं. तो उनका मुकाबला करने के लिए हमें हर वक्त नई चीज़ों की ज़रूरत होती है. बहुत से मेथड्स ऐसे चल रहे होते हैं कि हम नए हालात जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें. आज की वर्कशॉप का बेसिक मकसद ये है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, इन को यूज़ करते हुए हम नई आने वाली बीमारियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं. इंसानी जीन के अंदर जो म्यूटेशन आती है उससे जो विरासती बीमारियां आ रही हैं उनके सॉल्यूशंस की तरफ कैसे जाया जा सकता है. पंजाब यूनिवर्सिटी के ताउन से ये पहली दफ़ा वर्कशॉप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो मुनक़्क़िद की जा रही है. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये कि इसमें हम मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स को जो है वो एंटरटेन कर रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग हम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इनको फर्दर एडवांस लेवल पे भी लेके जाया जाए. पहले गुलाब देवी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे कभी भी कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है प्रैक्टिस नहीं की गई.
जौहर टाउन में इंटरनेशनल सोलर पावर कॉन्क्लेव और टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का इनेकाद किया गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। तकरीब में मैनेजिंग एडिटर नईम कुरैशी, रुकैया नईम समेत दीगर ने शिरकत की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मुल्क एनर्जी के हवाले से नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब वक्त आ गया है कि मुल्क में तवानाई का बहरान हल किया जाए। अवाम बिजली के बिलों से शदीद परेशान है। पीपल्स पार्टी सस्ती बिजली के हल के लिए कोशां है। फैसल करीम कुंडी का कहना था तवानाई के शोबों के चैलेंज से मुकाबला करके बिजली की कीमत कम कर सकते हैं। तवानाई की पॉलिसी बेहतर बनाकर आवाम को रिलीफ देना होगा। तकरीब में मुल्क में बेहतरीन कारकर्दगी वाली सोलर एनर्जी से मुंसलिक कंपनीज में अवार्ड तकसीम किए गए। खेलों के फ़रोग और नौजवानों की माली मुआवनत के लिए स्पोर्ट्स इंडोवमेंट फंड और चीफ मिनिस्टर पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने इफ्तिताह किया। 6000 नौजवान तुलबा को माहाना 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ने खेलों के फरोग और नौजवानों की माली मुआवनत के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया। स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड और चीफ मिनिस्टर पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने इफ्तिताह किया। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर, मंसूर अली खान और 200 से जायद टॉप एथलीट्स इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। फैसल अयूब खोखर ने कहा कि फख्र से कहता हूँ इंडोमेंट फंड में मेरा कोई सिफारशी नहीं, सब लोग मेरिट पर आए हैं। हर एलिमेंट के स्पोर्ट्स के हर एलिमेंट को हम केटर करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि पंजाब के हर जिले हर तहसील में से हम अपने प्लेयर्स को यहाँ पर उजागर करेंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आज जैसे मर्शद नदीम का नाम लेते हैं, हमारे कई ऐसे प्लेयर्स आएंगे जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड के लिए 2 अरब रुपए और चीफ मिनिस्टर पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम में 6000 नौजवानों को माहाना 25,000 रुपए मिलेंगे, जबकि इंडोमेंट फंड में 200 से जायद खिलाड़ियों को 1 साल के लिए माहाना फंड्स दिए जाएंगे। खिलाड़ियों को 3 कैटेगरीज प्लाटिनियम, गोल्ड और सिल्वर में तकसीम किया गया है। प्लाटिनियम कैटेगरी में 70,000, गोल्ड में 50,000 और सिल्वर कैटेगरी में 30,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि अंडर 16 खिलाड़ियों को भी इंडोमेंट फंड से नवाजा जाएगा। माहाना 15,000 रुपए मिलेंगे। वसीम अहमद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।